نور کے آ جانے سے کرن کی زندگی خوشگوار ہو گئی تھی۔ کمرے میں یا کچن میں یا لاؤنج میں وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی۔ نور کے ساتھ کرن بہت الرٹ رہتی۔ ویسے تو نور گھر کے کام کاج کرنے کی شوقین نہیں تھی، پر کبھی وہ کوئی کام کرنے کا کہتی تو کرن ساتھ ساتھ لگی ہوتی یا ملازمہ سے کہہ کر ساتھ ساتھ سامان سیٹ کرواتی رہتی۔ نور کو کرن کی اس تبدیلی سے تپ چڑھنے لگی تھی۔ اسے جٹھانی دیورانی والی فیلنگ آنے لگی تھی اور وہ کرن سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ کوئی بھی کام کرنے سے دستبردار ہو گئی۔ روحان کو آفس جاتے 2 ماہ ہو گئے تھے اور نور کچھ دن اپنے میکے رہنے گئی ہوئی تھی۔ اس نے کرن کو ساتھ چلنے کے لیے بہت بار کہا، پر کرن نے انکار کر دیا۔ اسے 2 دنوں سے اپنی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی اور اس دن تو وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ملازمہ سے کہہ کر گھر کے فون سے رانا صاحب کو کہلوا کر اس نے نور کو واپس گھر بلایا۔ نور گھر آئی اور بھاگتی ہوئی سیدھا کرن کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا کرن، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے کرن کی نبض دیکھی اور بخار دیکھنے لگی۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے پریشانی ہونے لگی۔ اس نے رانا بھائی کو کال کر کے کرن کی حالت بتائی اور ان کی ہدایت پر فوراً سے ڈرائیور کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئی۔ وہ روحان انٹرنیشنل بزنس مین کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے تو بروقت خود نہ آ سکے۔ چیک اپ کروا کر وہ واپس آئی تو نور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ تو کال کر کے روحان اور رانا صاحب کو بتانا چاہتی تھی، لیکن کرن نے اسے روکا ہوا تھا۔ کرن کو ابھی بھی بہت کمزوری ہو رہی تھی تو وہ آرام کرنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو رانا صاحب اور روحان جلدی گھر آ گئے۔ نور صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرن کیسی ہے؟ رانا صاحب نے فکر مندی سے نور سے پوچھا تو روحان بھی متفکر انداز میں نور کو دیکھنے لگا۔ آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ نور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نظریں نیچی کر کے کہا تو رانا صاحب پھرتی سے اپنے کمرے میں جانے لگے۔ روحان بھی ان کے پیچھے جا رہا تھا کہ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ ان کے کمرے میں بھابھی کو ملنے۔ روحان نے حیرانگی سے رانا بھائی کے کمرے کی جانب ہاتھ لہرا کر کہا، پہلے ان میاں بیوی کو تو مل لینے دو، تم بعد میں مل لینا۔ نور نے شرارتی انداز میں ابرو اچکا کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ روحان کو اب بھی نور کی پہیلیاں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بتاتی ہوں، تم چلو تو۔ نور اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ رانا صاحب کمرے میں گئے تو کرن نیم دراز سی بیٹھی تھی۔ ان کے آتے ہی بلش کرنے لگی۔ وہ اس کے پہلو میں آن بیٹھے۔ کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بہتر ہے، میڈیسن دی ہے، کمزوری ہو گئی تھی۔ شروع کے کچھ مہینے بہت نازک ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، کرن نے جھجکتے ہوئے کہا اور چمکتی آنکھوں سے رانا صاحب کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ رانا صاحب اتنے سمجھدار تو ہیں ہی کہ اس کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ رانا صاحب نے سمجھنے والے انداز میں آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ مطلب تم؟ وہ سوچ سوچ کر ناپ تول کر بول رہے تھے اور کرن سے اور چھپایا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے خود رانا صاحب کا فکرہ مکمل کیا اور خوشخبری کی نوید سنائی۔ رانا صاحب تسکین سے مسکرائے اور کرن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر مبارکباد دی اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے مشکور ہوئے۔ اسی لمحہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رانا صاحب اندر آنے کی اجازت دے چکے تو روحان ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔ نور بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ کنگریچولیشنز بھابھی، آپ نے ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، اس نے پھولوں کا گلدستہ کرن کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ کرن نے گلدستہ پکڑا اور قریب کر کے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر سایہ گزرا۔ وہ روحان کے کمرے کے ٹیرس کے گلاب تھے۔ ایک مرتبہ پھر آرین کی یاد تازہ ہو گئی تھی جسے اس نے تیزی سے جھٹک دیا۔ آج اس کی دنیا میں خوشیاں آئی تھی، اس کی زندگی میں نئے مہمان کا اضافہ ہونے والا تھا اور وہ ماضی کے دکھ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سامنے متوجہ ہوئی جہاں اس سے جڑے لوگ اس کی خوشخبری سن کر جھوم اٹھے تھے۔ 2 ہفتے ان کے گھر میں خوشحالی سے گزرے۔ نور اور روحان ہر وقت کرن کی خدمت میں حاضر رہتے اور رانا صاحب کا رویہ بھی پہلے سے نرم تھا۔ وہ ظاہر تو نہیں کرتے لیکن باپ بننے کی خوشی ان کو کافی حد تک نرم کر چکی تھی۔ کرن کے ٹوٹے خواب پھر سے بننے لگے۔ وہ نئے سرے سے امید باندھ رہی تھی کہ اولاد کے آنے سے ان کی زندگی واقعی سنور جائے گی۔ یہ بچہ اس کی قسمت کی چابی بن کر آیا ہے۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی تھی، اس کا گھرانہ بس جائے گا۔ اس نے ظہر کی نماز ادا کی اور دعا میں اللہ سے موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ بے شک اللہ سب کی سننے والا اور اسے دینے والا ہے۔
मौसम गर्मा के आगाज में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और उस दिन बादलों ने आफताब को छुपा दिया था। राना मुबशिर और रोहान सारे कारकुनान को इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंस रूम में खिताब कर रहे थे। बड़ी सी स्क्रीन के सामने पहले रोहान ने नए साल के लिए मुअय्यन फाइनेंशियल बजट की तफसीलात पेश की, फिर राना साहब ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट से आगाह किया। वो मुअज़्ज़ज़ अंदाज में स्क्रीन के सामने खड़े हाथ हवा में लहराते कारकुनान को उनकी ड्यूटी समझा रहे थे। जब कोने में बैठा आर्यन उठा, लेकिन इस तरह तो मजदूर तबका खसारे का शिकार हो जाएगा। उनको मुश्किल से मजदूरी मिलती है, अगर हम उसमें से भी कमीशन काट लेंगे तो उनको 2 वक्त खाने को कैसे मिलेगा। उसने बुलंद आवाज़ में सर्द मोहरी से कहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, राना साहब आर्यन को चोरी छुपे उनके घर जाने पर झड़पना भूल गए थे और आज उसने राना साहब को खुद अपनी तरफ मुतवज्जो करने की गलती कर दी थी। आर्यन के इस तरह कॉन्फ्रेंस के बीच में मुदाखलत करने पर राना साहब ने जब्त कर लिया और रोहान ने तुंदही से उसे घूर कर देखा तो मैनेजर ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप होने का इशारा किया और बाकी हम मनसबों ने भी खामोश नज़र उस पर डाली। आर्यन मुंह बिसोरते अपनी जगह पर बैठ गया, बेदिली से पाँव हिलाने लगा। माहौल में बढ़ता तनाव देखकर रोहान ने राना साहब को उनकी सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में याद करवाया तो वो आर्यन पर जमी नज़रें फेर कर फिर से गोया हुए। रोहान ने अपने भाई का मिजाज दुरुस्त होते देखा तो शुक्र का सांस और फिर से तने अबरू से आर्यन को देखा। आर्यन अपने जज्बात जब्त करते हुए रोहान से नज़र चुरा गया। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सब अपने अपने कैबिन्स में चले गए। राना साहब ने पेन हाथों में घुमाते सीट की पुश से टेक लगाई और मैनेजर को आर्यन को उनके पास भिजवाने का कहा। मैनेजर सर को खम देकर बाहर आया और 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, राना साहब ने कुर्सी झुलाते हुए कहा। आर्यन स्पाट तासुरात बनाए हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में अंदर आया। आइए आर्यन साहब, आपको एडिटिंग डिपार्टमेंट से निकाल कर मजदूर यूनियन का सरबराह नहीं बनाना चाहिए। ऊंचा बोलने का बहुत शौक है ना आपको, राना साहब ने कुर्सी से उठते हुए कहा और कदम कदम चलकर आर्यन के सामने आ गए। हराम का कमाने से तो अच्छा है कि मजदूरों के साथ मिलकर हलाल की सूखी सूखी रोटी ही कमाई और खा ली जाए। आर्यन ने स्पाट अंदाज में कहा। वो आज राना मुबशिर के लिए एहतराम, उनके और अपने रुतबे का फ़र्क सब बालाए ताक रखकर तरकी बतरकी उन्हें जवाब दे रहा था। राना साहब ने पैंट की जेबों में हाथ डाले, उसकी बात पर अबरू उचकाए। मुझसे बहस करने का अंजाम जानते हो ना? राना साहब की आवाज़ डट गई, पेशानी की रगें तन गई। अपने से कमतर आवाम पर जुल्म करने के अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं मिस्टर राना मुबशिर? यहाँ अपने कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और घर में अपनी बीवी को, आर्यन ने जोर देकर कहा। राना साहब के अबरू ताज्जुब से फैल गए। तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी बीवी को कैसे रखता हूँ? राना मुबशिर ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और वहशतनाक अंदाज में बोले। आर्यन को एहसास हुआ कि उसने जज्बाती होकर गलत वक्त पर यह बात कर दी। अपना पछतावा छुपाते हुए उसने मासूमाना अंदाज बनाया। वैसे ही सिर्फ अंदाज़ा लगाया है राना सर, मुझे कैसे पता होगा? उसने मामला संभालने की कोशिश करते हुए कहा। राना मुबशिर पर उसके भोलेपन का ज़रा भी असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत से आर्यन को धकेला। वो लड़खड़ाता दीवार से जा लगा। उस दिन तुम्हें और किरण को एक ही वक्त पर गायब पाकर मुझे शक हुआ और तस्दीक करने मैं घर भी गया, लेकिन कोई सबूत हाथ ना लगा तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है और इस बात को मैं नज़रअंदाज कर गया। उन्होंने ठोरी खुजाते हुए कहा और फिर से एक मर्तबा आर्यन के गिरेबान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। लेकिन आज तुमने खुद तस्दीक कर दी कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी से मिलते हो। उन्होंने आर्यन के मुंह पर जोरदार ज़रब लगाई। उसके कदम डगमगाए और फर्श बोस हो गया। वो उसके नाक से खून रिसने लगा। दर्द बर्दाश्त करने के लिए उसने आंखें मूंद कर लब भींचे और फिर से खड़ा हो गया। वो चाहता था कि राना साहब उसे मार मार कर अपना गज़ब ठंडा करें ताकि उसकी गलती के लिए वो किरण पर हाथ ना उठाएं। पहले दिन मेरी आंखों के सामने जब मैंने तुम्हें मेरी बीवी को ताड़ते देखा, तभी मैं समझ गया कि तुम्हारी नीयत में खोट है। उन्होंने आर्यन का सर पकड़कर दीवार पर दे मारा और उसके मुंह से कराह निकली। वो टेबल पर से खिसकता हुआ कुर्सी से जा टकराया था। आर्यन चाहता तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, लेकिन उसने राना साहब की मार को किरण की खातिर जब्त कर लिया। राना साहब के कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज़ें सुनकर मैनेजर तेज़ी से भागा और रोहान को खबर दी। रोहान का रंग फक से उड़ा था
और मैनेजर के हमरा वो भागता हुआ राना साहब के कैबिन में दाखिल हुआ। राना भाई, रोहान भागता हुआ राना मुबशिर के आगे गया और बाजुओं से उन्हें पकड़ लिया। राना भाई स्टॉप इट, छोड़ें इसे। उसने पूरे जोर से राना भाई को जकड़े रखा और आर्यन को उससे दूर कर दिया। तुम क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। उसने रुख मोड़े चिल्लाकर आर्यन को मुखातिब किया, जो लंगड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ था। मैनेजर तेजी से आगे आया और आर्यन का बाजू दबोचकर घसीटता हुआ उसे बाहर ले गया। रोहान ने राना भाई को बिठाया और पानी पिलाया। गुस्से से वो पसीना पसीना हो गए थे और झड़प से तनफ्फुस तेज हो गया था। रोहान को इस अफसोसनाक सानिहे पर दुख हो रहा था, लेकिन राना भाई से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए खामोशी से उनको दिलासा देने लगा। आर्यन को मैनेजर ने गेट से बाहर पटक दिया था। वो खुद को संभालते हुए दरख्त का सहारा लेने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था। वो किरण को दरपेश खतरे से आगाह करना चाहता था, लेकिन उसके पास किरण से राब्ता करने का कोई जरिया नहीं था और इस तराब में वो सर पकड़ कर बैठ गया। शाम घर आकर राना साहब खामोश रहे, कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। डिनर भी उसी खामोशी से किया गया और अपने कमरे में चले गए। किरण जब नूर और रोहान को शब्बा खैर कहकर अपने कमरे में आई तो राना मुबशिर को दरवाजे पर ही खड़े पाया। राना साहब, कुछ चाहिए? उसने खुश मिजाजी से उन्हें मुखातिब किया। वो पीछे अपने हाथ मिलाए संजीदगी से उस पर नज़र जमाए हुए थे। कब से चल रहा है तुम्हारा और आर्यन का? उन्होंने सर्द मोहरी से कहा। किरण राना साहब की जुबान से आर्यन का नाम सुनकर ठिठक गई और सहम कर रुख राना साहब के दूसरी जानिब मोड़ा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझी नहीं, किरण ने अपने खौफ को दबाते हुए पूछा। राना साहब एड़ियों के बल पलटे और उनकी तेज सी नज़रें किरण के अंदर तक चुभने लगी। मैंने कहा था ना, मुझसे बेईमानी की तो जान से मार दूंगा। राना साहब ने किरण के कंधों को झिंझोड़ कर उसे याद दहानी कराई। किरण अफसुर्दा हो गई, आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? किरण ने मायूसी से उनके चेहरे के गिर्द अपने हाथों का हाला बनाते हुए कहा। जब मैं ट्रिप पर गया था तो मुझसे मिलती रही हो ना, उन्होंने उसी ज़ाब्ता अखलाक से कहा। किरण के ताज्जुब से अबरू फैल गए, दिल डूबने लगा, हाथ छूटकर पहलुओं में जा गिरे। राना साहब ने तल्ख मिजाजी से सरता पैर उसे घूरा। इस बच्चे से पहले बस राना साहब, इसके आगे एक लफ्ज़ भी और मत कहिएगा। मैं आज तक चुपचाप आपकी डांट, आपकी मार, आपकी झिड़क सब बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन अपने किरदार पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगी। किरण ने भर्राई हुई आवाज़ में खुद को उनसे दूर करते हुए कहा और राना मुबशिर की बात हलक में ही अटक कर रह गई। ये मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने आपसे कभी भी धोखेबाजी नहीं की। मैं पूरे तन मन से आपकी बीवी हूँ और रहूँगी। हाँ, मैं आर्यन से मिलती थी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ताल्लुक़ नहीं था हमारा। प्लीज़ यकीन करें मेरा। उसने नरमी से भीगी आंखों से कहा और प्यार से राना साहब का बाजू थाम कर इल्तजा की। राना साहब ने तने हुए आसाब से पूरे ज़ोर से उसे खुद से अलग किया। किरण के कदम डगमगाए, वो पेट के बल फर्श पर जा गिरी। मारे तकलीफ़ के वो चीखने चिल्लाने लगी। राना साहब के तने आसाब ढीले पड़ गए, लेकिन वो अपनी जगह जामिद रहे। किरण की बुलंद आवाज़ में रोने की आवाज़ें सुनकर रोहान और नूर तेज़ी से कमरे से बाहर आए और सीढ़ियों पर लपके। रोहान फुर्ती से एक साथ 3 सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर आया, नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर देखकर वो धक रह गया। किरण फर्श पर पड़ी करा रही थी और राना साहब तुंद तासुरात बनाए जामिद खड़े थे। नूर फूलती सांस से कमरे में दाखिल हुई और हैबत ज़दा होकर घुटनों के बल किरण के सिरहाने बैठी। किरण, क्या हुआ किरण? रोहान, देखो इसे क्या हो रहा है। किरण, वो हवास बागता किरण के हाथ मसलने लगी और किरण पेट पकड़े मुसलसल करा रही थी। रोहान कभी किरण को देखता और कभी राना भाई के बेतासुर चेहरे को। अपने ख्यालात झटकते हुए वो नूर के साथ बैठा और किरण का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। नूर, उठाओ इसे। किरण, हिम्मत करो, उठो, कम ऑन, हमें अस्पताल जाना होगा। उठो किरण। उसने नूर की मदद से किरण को सहारा देकर उठाया और बाहर ले जाने लगा। अपनी गाड़ी में लिटाकर रोहान ड्राइविंग सीट पर आया और पूरी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला दी। राना साहब अपना हुलिया दुरुस्त करते 1 घंटे बाद अस्पताल पहुंचे और रोहान को नज़रअंदाज करके नूर से मुखातिब हुए। किरण कैसी है? उन्होंने मुतफिक्र अंदाज में पूछा।
अभी तक कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर अपनी कोशिश कर रही है। नूर परेशानी से दो चार इसी हालत में राना साहब से बस इतना ही कह पाई। राना साहब ने एक झूठी नज़र रोहान पर डाली। वो स्पार्ट अंदाज में उन्हीं को देख रहा था। राना साहब रुख फेर कर 2 कदम आगे खड़े हो गए। आंखें बंद करके वो पेशानी सहला रहे थे। जब उन्होंने रोहान को उनके साथ आकर खड़ा होता महसूस किया, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इस हालत में। रोहान ने कहते हुए हवा में हाथ उठाए। राना साहब ने रुख मोड़कर उसे देखा और वापस खामोश निगाहों से सामने देखने लगे। रोहान ने बेबसी से सर्द आह भरी और वापस मुड़ गया। रोहान ने आज पहली बार राना साहब से सवाल किया था। उसमें राना साहब के आगे बोलने की हिम्मत आ गई थी, उनसे मुबासा करने की कुव्वत आ गई थी। आज राना साहब ने रोहान की आंखों में अपने लिए सर्द मोहरी देखी थी, जो उनको अंदेशे में मुब्तला कर रही थी। वो तीनों इसी कश्मकश में थे जब उन्होंने निगार बेगम को बुलंद आवाज़ में जेली आहू बका करते हुए देखा। हाय, क्या हो गया मेरी बच्ची को? किसकी नज़र लग गई मेरी बच्ची को? हाय हाय, मेरी प्यारी बच्ची किस हाल में है? उन्होंने अपनी सीना को भी शुरू कर दी थी, जो नूर ने बरवक्त अस्पताल का लिहाज याद करवाते हुए उन्हें रोक दिया। राना साहब और रोहान निगार बेगम के ड्रामे पर मुंह बिसोरते रह गए। कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई तो नूर, रोहान और निगार बेगम आगे लपके डॉक्टर से किरण का हाल दरियाफ्त करने लगे। किरण खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में तसल्ली देते कहा, लेकिन फ़िलहाल दवाइयों के ज़ेरे असर है। एंड वी आर सॉरी राना साहब, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। आपकी मिसेस का मिसकैरेज हो गया है, डॉक्टर ने अफसोस से राना साहब को मुखातिब करते हुए कहा और वहाँ से रवाना हो गई। उसकी बात सुनकर राना साहब ने जख्मी सांस खारिज की और लब भींचे पलकें झुकाई। वहीं दूसरी जानिब नूर ने मुंह पर हाथ रखा और निगार बेगम अपने ख़ास अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। शिट, रोहान ने कोफ से दीवार पर लात मारी। रोहान, हौसला रखो, कुदरत को शायद यही मंजूर था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना, इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे? नूर ने रोहान को दिलासा देते हुए कहा और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। उसे सबसे ज़्यादा अपने राना भाई के लिए परेशानी हो रही थी। राना भाई, आप ठीक तो हैं ना? नूर ने दिल गिरफ्तगी से हमदर्द लहजे में उन्हें मुखातिब किया। राना मुबशिर ने दिल शिकस्ता अंदाज में उदास नज़रों से नूर की जानिब देखा और सर को अस्बात में जुम्बिश दी। 1.25 घंटे बाद राना साहब कुर्सी पर बैठे, कोहनियाँ घुटनों पर टिकाए, हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर सर उस पर रखे हुए थे। जब नर्स ने आकर किरण के जागने की इत्तला दी, वो चारों उठकर आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। किरण जर्द चेहरे और वीरान आंखों के साथ नीम दराज लेटी थी। नूर उसके पहलू में बैठी और उसके कंधे से लिपट गई। शुक्र है तुम ठीक हो किरण, तुम मायूस मत होना, सब ठीक हो जाएगा, नूर ने उससे अलग होते हुए कहा। निगार चची उसके सिराने खड़ी होकर उसके सर पर शफकत से हाथ फेर रही थी। हाँ किरण, तुम सलामत हो तो ये खुशी फिर से आ जाएगी। मैं तो कल ही तुम्हारे नाम से सदका खैरात कराऊंगी, चची ने भी नरमी से उस पर तरस खाते हुए कहा। नूर और निगार बेगम उसे दिलासा देने, उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो खामोश बेहिस्सो हरकत उनको देखती रही। उन पर से होते हुए किरण की नज़रें पीछे खड़े मर्द हजरात पर पड़ी। रोहान फीका सा मुस्कुराया, जबकि राना साहब बिना किसी तासुर के उसे देख रहे थे। किरण के दिल में टीस उठने लगी और इस तराब में इजाफा हो रहा था, इसलिए रुख मोड़ा और दूसरे टेबल पर काम करती नर्स को पुकारा। नर्स, मुझे अभी आराम करना है, आप इन सब से कहें यहाँ से चले जाएं, किरण ने स्पार्ट अंदाज में कहा। तो नर्स किरण की बात सुनकर सबको देखने लगी। चलो नूर, रोहान ने नूर का बाजू थपथपाते हुए कहा। लेकिन नूर ने कुछ कहना चाहा तो रोहान ने नफ़ी में सर हिलाते उसे चुप होने का इशारा किया और उसे उठाने लगा। नूर का दिल भर आने लगा। वो उठकर रोहान के साथ बाहर निकल गई। निगार चची ने इस सूरत हाल में मुदाखलत ना करना ही मुनासिब समझा और खामोशी से बाहर निकल गई। किरण सर झुकाए कनखियों से देख रही थी। राना साहब वहीं खड़े थे। ऐसे मौके पर लड़की को शोहर का साथ दरकार होता है, उसकी तसल्ली चाहिए होती है। किरण को इतना सब होने के बावजूद भी राना साहब से मोहब्बत की नज़र की तवक्को ही ना थी। उसने भी सोच रखा था कि अगर राना साहब उसे थाम कर, दिलासा देकर उससे एक दफ़ा झूठ मूठ ही सही अफसोस का इजहार करें, अपनी गलती पर कनात करें, तो वो भी सब कुछ भुलाकर उन्हें माफ़ कर देगी। लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरक्स राना साहब उसी खामोशी से वापस मुड़कर बाहर निकल गए।
किरण ने कुर्ब से आंखें बंद करके आंसुओं का गोला अपने अंदर उतारा और गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज करने लगी। सुबह घर लौटने के बाद वो कमरे में आराम करने चली गई। पसमर्दा सी खुश्क आंखों से छत को तकती रही वो काफ़ी देर। उस दिन राना साहब और रोहान ऑफिस नहीं गए। निगार बेगम भी उनके साथ आ गई थी। नाश्ता, लंच, डिनर किरण को सब कमरे में ही दिया गया। रात को सोने के लिए राना साहब कमरे में आए तो आहट सुनकर किरण ने आंखें मूंद ली और सोने की अदाकारी करती रही। वो उस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह मानसून की बारिशें अपने आगाज में थी। बाहर वक्फे वक्फे से बारिश बरस रही थी। वो राना साहब के ऑफिस जाने के बाद कमरे से बाहर निकली और भारी कदमों से सीढ़ियां उतरते नजरें घुमाकर बंगले का जायजा लिया। क्या फ़ायदा, पिंजरा सोने का हो या पीतल का, होता तो पिंजरा ही है ना। ऐसे बंगले, ऐसी जायदाद का क्या फ़ायदा जब कैदे तन्हाई नसीब में लिखी हो। उसने दिल में सोचा और उदासी से सर झटका। आखिरी जीने पर उसने रोहान की आवाज़ सुनी तो डाइनिंग एरिया में गई। वो और नूर वहीं बैठे बातों में मसरूफ़ थे। किरण, तबीयत कैसी है? हमें बुला लिया होता, हम कमरे में आ जाते तुम्हारे पास। नूर ने सीट से उठते हुए कहा, अब ठीक हूँ, कमरे में दिल तंगी कर रहा था तो नीचे आ गई। उसने हल्की आवाज़ में कहा। उसका दिल राना मुबश्शिर से दुखा था, नूर और रोहान से नहीं, इसलिए वो सिर्फ राना साहब से रूबरू होने से कतराती थी। अच्छा किया, चलो लाउंज में बैठते हैं, रोहान ने दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया और वो तीनों लाउंज में आकर बैठ गए। किरण, राना भाई के बर्ताव के लिए मैं तुमसे मुआज़रत ख्वाह हूँ, रोहान ने हाथ बाह मसलते हुए सर झुकाकर इजहार नदामत किया। तुम क्यों माजरत कर रहे हो? तुमने तो बर वक्त मुझे बचाया है, पर अब सोचती हूँ कि काश ना बचाते, काश मैं भी मर ही जाती। किरण दिल गरिफ्तगी से बोली। कैसी बातें कर रही हो किरण? नूर ने मुंह बनाते हुए उसे टोका। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि राना भाई, रोहान ने बेबसी से कहा और उठकर कमर पर हाथ रखे खड़ा हो गया। किरण का दिल भर आने लगा। वो अपने इज़्तिराब को काबू में रखने के लिए अपने हाथ मरोड़ने लगी। जब मेरा राना साहब से रिश्ता हुआ, मैंने सोचा कि हमारी जोड़ी अल्लाह ने एक दूसरे के लिए बनाई है। राना साहब भी बचपन से ही मुश्किलात में फंसे रहे और मैं भी। किरण पलकें झपकाकर आंसुओं को रोकने की कोशिश करती उठ खड़ी हुई। एक लंबी सांस लेकर फिर से गोया हुई। माँ बाप अलग हो गए, मुल्क छोड़कर आना पड़ा, बीवी कम अरसे में इंतकाल कर गई। इतने साल अकेले गुजारे, मेरी तरह उन्हें भी अपनों का प्यार कभी नहीं मिला। किरण कहते हुए कुछ पल खामोश हुई। उसकी जुबान कपकपा रही थी। नूर और रोहान सन्नाटे में डूबे उसी को सुन रहे थे। खुद को कंपोज करते वो फिर से अपनी कैफियत बयान करने लगी। मैंने सोचा था कि अब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, ज़िंदगी के हम सफ़र बनेंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, इज्जत देंगे, वो खुशियाँ देंगे जिससे आज तक हम दोनों महरूम रहे। किरण ने बहते आंसुओं में अपने दिल के अरमान जाहिर करते हुए कहा, लेकिन उन्होंने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। मैं फिर भी कोशिश करती रही, अपने रिश्ते को निभाने के जतन करती रही। सोचा कभी तो वो बदलेंगे, कभी तो उन्हें मेरा एहसास होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी आखिरी आस, मेरे बच्चे को भी ख़त्म कर दिया। फिर भी अगर उन्हें ज़रा भी एहसास होता तो मैं माफ़ कर देती, लेकिन उन्हें अब भी एहसास नहीं है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। इतना कहते किरण मुंह पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गई। उससे ये तकलीफ़ बयान नहीं हो रही थी। नूर अश्कबार आंखों से उसको दिलासा देने लगी और रोहान लब भींचे खामोश खड़ा रहा।